Hello students, in our today's topic of class 12th IP, we will see how to create data frame from CSV file. We have already seen this in our earlier lesson, but in this we will see what are the various ways in which we can create data frame from CSV files, and we will also see how to create any CSV file from the data frame, means vice versa. So for doing that, first we will open idle. So you all know what we are going to learn today. We need to make a data frame from CSV file. So for doing that, you should have any CSV file first of all created. So I have already created one CSV file in the same folder in which your Python files are saved. See, I have created one CSV file in the same folder in which your Python programs are saved. This is the file. I can open it. So after opening, it is looking like this. And how to make CSV file, you have already seen it in my previous topic. It can be created in MS Excel. I have given the sample of creating CSV file in the previous topic. So this is my CSV file that I have already created. So this file I have opened in text mode, but if you want to open it in Excel, you can open it by opening it in Excel. See, I have opened Excel here and I can see this file. This is my Excel CSV file by clicking on it. So in this way I have created one CSV file. So on working, I will work on this CSV file today in today's topic. First, if you need to import this CSV file as a data frame, then you should you should remember the file name. It is exfile.csv is its extension. For doing that, you should first import pandas as pd. Then you can use a function read underscore CSV. It is a function name which you can use. So for reading this CSV file into data frame, I will say here df. df is the data frame name in which I am going to read the CSV file. pd.read underscore CSV. This is the function name that you can use, and give here file name x file dot CSV and close here. You can see your df is like this. जहाँ पे हमारी रो ब्लैंक थी वहाँ पर ऑटोमेटिक नैन आ गया है. You can see it in Excel also. Again, see, I have opened Excel here. So if you check, I have knowingly given a blank row. So अवंतिका और जॉन के बीच में एक ब्लैंक रो है, और उसके सेम वहाँ से जब डाटा फ्रेम बनाने के लिए उठाया गया रीड CSV फंक्शन से, देन देयर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नैन वैल्यूज. सो इतना तो हमने लास्ट टॉपिक में कर लिया था. सो व्हाट इज़ न्यू इन टुडेज टॉपिक, एक और है मेथड जिसमें हम रीडिंग करके दिखाएंगे इसी डाटा फ्रेम के मीन्स इसी फाइल से, बट मैं उसमें कुछ वेरिएशंस कर रही हूँ. जैसे कि if you want to say df equal to pd.read underscore csv in small bracket, you should give the file name first, exe file dot csv, and then
there is one new thing, use calls. Use calls means use columns equals to means मुझे डाटा फ्रेम जो बनाना है उसमें कॉलम्स कौन कौन से रखने हैं. फर्स्ट मैंने कहा नेम, सेकंड इज एज एंड थर्ड मैंने उसमें कहा है UT2. बस इतना ही. एंड इफ़ यू से DF, तो DF में डाटा जो आया है वो सारा नहीं आया है आपकी CSV फाइल से, वो आया है ओनली 3 कॉलम्स. सो दिस वाज द वन मेथड ऑफ रीडिंग. You can explain it by saying reading CSV file with specific columns. हमने एक CSV फाइल को रीड करके दिखाया है बट कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का ही नाम मेंशन किया था. अगर हम यूज कॉल्स मेंशन नहीं कर रहे हैं देन देयर विल बी ऑल द कॉलम्स दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर एक्सेल फाइल और CSV फाइल. Next we will be understanding today, that is reading. रीडिंग ही करनी है हमने CSV फाइल की बट विदाउट हेडर. मीन्स ये जो ऊपर का हेडर आपके पास आया है नेम एज UT2, ये हमने कॉलम्स के इंडेक्स में नहीं रखना है. मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि यही हमारा डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो फॉर डूइंग दैट इफ यू सेम कमांड pd.read_csv, बट यहाँ पे अब चेंज है हेडर इक्वल्स टू नन. मीन्स हमने कहा कि अब हमारे डाटा में हेडर कुछ नहीं है, हम जो CSV फाइल में है वो कंप्लीट डाटा ही एज इट इज़ उठाना है. तो जब आप कहोगे DF, तो इसने क्या किया, लास्ट टाइम जो कॉलम्स थे आपके हेडर थे आपकी CSV फाइल में, मीन्स जो फर्स्ट रो थी आपकी CSV फाइल में, वो ऑटोमेटिक आपके कॉलम्स का इंडेक्स बन गया था. बट इन दिस केस जब आपने कहा हेडर नन, देन इन दिस केस क्या हो रहा है कि आपके जो फर्स्ट रो का डाटा था आपके CSV फाइल में वो आपके डाटा फ्रेम का डाटा बन गया है और डाटा फ्रेम के कॉलम्स का इंडेक्स ऑटोमेटिक बन गया है 0 1 2 3 4 जैसे रोज का बनता है. सो ये सेकंड वे था जो हमने देखना था, रीडिंग CSV फाइल बट विदाउट हेडर. नेक्स्ट है रीडिंग. रीडिंग ही करेंगे हम, रीडिंग CSV फाइल विदाउट इंडेक्स. अब इंडेक्स किसकी बात हो रही है, जो आपका कॉलम का इंडेक्स है और जो आपका रो का इंडेक्स है वो भी. सो इसके लिए अगर हम यूज़ करें DF इक्वल टू pd.read_csv and then you are saying file name exfile.csv और फिर है नेक्स्ट इन आर्ग्यूमेंट जो है वो है इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल फॉर कॉलम इक्वल टू 0. इफ यू से DF, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडेक्स जो है कॉलम का, मीन्स जो आपका फर्स्ट कॉलम था वो आपका रो का इंडेक्स बन गया है और आपकी जो सेकंड ऑनवर्ड कॉलम्स थे वो आपके कॉलम के इंडेक्स बन गए एंड डाटा बिकम्स लाइक दिस. देयर इज वन मोर मेथड ऑफ रीडिंग CSV फाइल विद न्यू कॉलम नेम. अगर आपने जो उधर हेडर फर्स्ट रो में जो नाम दिए हुए हैं, हेडिंग दी हुई है, अगर आपको वो पसंद नहीं है अपने डाटा फ्रेम में तो आप वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है. एंड दिस कैन बी डन बाय सेइंग DF इक्वल टू pd.read_csv and in that you should say exfile.csv comma and
हमें करना क्या है कि फर्स्ट रो जो हमारी ये फर्स्ट एक्सेल में जो फर्स्ट रो का डाटा है वो हमारा कॉलम बन के आ रहा है, हमें वो नहीं लेना है एज अ कॉलम। तो हम उसके लिए पहले तो कहेंगे स्किप रोज कि हमने कौन सी रो स्किप करनी है, नंबर 1 वाली। और फिर हमने कह दिया साथ में कि नेम्स क्या होने चाहिए आपके कॉलम्स के नाम, कोई भी न्यू नेम। अब न्यू नेम मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे कि इक्वल्स टू दिस। सी आई हैव यूज्ड स्किप रोज 1 एंड नेम्स मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पे एक लिस्ट में कि मुझे नेम की जगह पे क्या नाम रखना है कॉलम का, स्टूडेंट नेम। एज के अगेंस्ट एज, एंड फॉर UT1 I have given new name test1, for UT2 I have given test2, and for UT3 I have given test3. So in the same way आपके जो कॉलम्स का नाम है ऊपर ये चेंज होके आ रहा है। और पुराने वाला नाम किस वजह से चला गया, बिकॉज यू हैव गिवन skip rows equal to 1. So in the same way we can skip multiple rows also. If I say 2 here, then starting 2 rows आपकी skip हो जाएंगी, मीन्स ये अमन वाली रो भी अब आपके डाटा फ्रेम में नहीं आएगी। So in the same way you can work in different ways in CSV files to create your data frame. So further अब हमने करना है इसका रिवर्स सीखना है। रिवर्स मीन्स कि हमारे पास डाटा फ्रेम गिवन है, वी हैव अ डाटा फ्रेम बट वी नीड टू क्रिएट इट CSV फाइल। देन मीन्स हमें हमारे एक डाटा फ्रेम से CSV फाइल क्रिएट करनी है, तो हम वो भी पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं इन आइडल। सो फॉर डूइंग दैट फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम, वो मैं क्रिएट कर देती हूँ अभी। सो यू ऑल नो फॉर क्रिएटिंग डाटा फ्रेम you can use the easiest way of creating data frame is dictionary. जब भी डाटा फ्रेम क्रिएट करना है तो आपको सबसे सिंपल वे क्या नज़र आना चाहिए, एक डिक्शनरी बना लीजिए उसके अंदर। सो मैं एक डिक्शनरी यहाँ क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि ए इसकी की है और कुछ वैल्यूज़ हो गई हैं उसके अंदर 1,2। नेक्स्ट की इज़ बी एंड फॉर दैट आई एम गिविंग वैल्यूज़ 3,4 and next is C, for that I am giving here 5,6. ये हमने एक डिक्शनरी पास कर दी है डाटा फ्रेम फंक्शन के अंदर। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम। ये एक डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इस डाटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। सो फॉर डूइंग दैट यू शुड यूज DF, डाटा फ्रेम का नाम, .to_CSV, .to_CSV you can use here, and for that you should say any file name. For example, I have given new file.csv. So अगर आपको अब ये फाइल देखनी है कि क्या ये फाइल बन गई है, so for that you can open the file in this open, and by saying all files you can check new file here. See, this is a new file that has been created from your data frame. ये इस तरह से। और फर्स्ट के लिए यहाँ पे क्या आ गया, ऑटोमेटिक एक खाली बॉक्स, मीन 0 1 को इसने क्या किया, वहाँ से जो 0 और 1 आपका रो का इंडेक्स था वो भी इसने डाटा में ले लिया है। यू कैन ऑल्सो सी दिस फाइल बाय ओपनिंग इट इनटू MS Excel। अगर MS Excel में फाइल आपने ओपन करनी है तो पहले तो आपको ये पाथ कॉपी करना होगा, यहाँ पे Ctrl+C, और फिर एक्सेल में जाइए, ओपन एक्सेल फाइल, एंड देन हियर यू कैन ओपन इन ओपन, यू कैन place this path here
copy. See, I have pasted the path here in the open button, and by pressing enter you can select here all files and you can find your new file here. See, in this way your CSV file has been created. So this was all for today's topic. आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि हमने एक CSV file, we have read the CSV file in different ways and we have created a CSV file from